नहीं कर पाएंगे? पहले बताओ जिसको लगता है कर पाएंगे। करेंगे पर ज्यादा नहीं करेंगे। थैंक यू। कर लेंगे? क्या लगता है? कर लेंगे। करने क्यों नहीं कर पाएंगे? सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, एडजेक्टिव्स के बिना एवरी सेंटेंस इज वीक। किसी भी सेंटेंस में अगर एडजेक्टिव नहीं होगा ना तो वो सेंटेंस में स्ट्रेंथ नहीं होगी। तो एक तो उनकी राइटिंग इंप्रूव हो रही है और दूसरी उनकी क्रिएटिव राइटिंग। दे आर एबल टू यूज देयर इमेजिनेशन टीचर्स। ठीक है? कितने टाइप के एडजेक्टिव्स होते हैं पता है हमें? 2, 3, 5, 7, 8, 10। Okay, let's start with the opening prayer first. Okay. Om गण गणपते नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपतये नमो नमः, सिद्धिविनायक नमो नमः, अष्टविनायक नमो नमः, गणपति बप्पा मोरया। Who will read this for me? I need a volunteer. Please, आप पढ़िए उठ के। That's okay, कोई बात नहीं। और pronoun, pronoun, not proper noun, pronoun. Yes. Generally, an adjective function is to further define and quantify a noun or pronoun. In other words, we can say that a noun or pronoun that serves as the subject of a sentence can be described or given additional information. Thank you. Your good name is? Thank you. Please sit. ठीक है? So adjective जैसे आपने बोला, to cut the long story short, it is a word that describes noun or a pronoun using the qualities, characteristics and more features. He wore a beautiful suit. Beautiful is a adjective. A wooden car. What kind of a car? Wooden car. I like that really big old green antique bike that is parked here. इसमें कितने adjectives हैं? 4 और 5? 5 किससे बोला था पहले? That's okay. Big, old, green, antique, right? Yes. Ashwani is taller than Barsha. Ashwani is taller than Barsha. Rohit is a part-time worker. ठीक है? What kind of a worker he is? He's a part-time worker. So that is why it's a adjective. These are the types of adjective. Descriptive adjective और attributive adjective भी बोलते हैं उसे, which describes the detail of the quality of the noun or pronoun being used. Quantitative adjective, as the quantity indicates, we are talking about numbers. Thank you. Numeral adjective. Again, numerical value has to be defined in that sentence. Demonstrative adjectives. Yes, that demonstrates that which is the direction from which you are demonstrating. Distributive adjectives. A group or a whole, some form of words which are combining the complete formation. Okay, we will look at the examples, don't worry. I'm just telling you a basic thing. We will go through them in detail. Interrogative adjectives. Yes. Questions. So if someone interrogates you, आप कहाँ थे? कब आए? Late क्यों आए? Right? Where were you? Why did you come late?
what is the reason, right? So if somebody interrogates you and asks these questions, you should quickly know in your head that yes, we are talking about interrogative adjectives. Possessive adjective, yes, which possesses the noun completely, takes ownership. Yes, my, mine, yours, his, theirs. Yes. इसका एक फटाफट से एक नोट बना लो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव का, बिकॉज इसके बेसिस में होमवर्क भी दूंगा. सो अगर आप तो ये आपको याद रहेगा तो देन यू विल बी एबल टू इजीली डू द होमवर्क एज वेल टीचर्स. सो इसको एक बार ही आप क्विकली एक नोट रख लो प्लीज. Done, everyone? Karanji, done? First, let's look at the descriptive adjective. Descriptive adjectives are used to describe nouns and pronouns. They show the quality or kind of the noun or pronoun that is being used. So, let's look at the examples of descriptive nouns. Monica is very tired today. It describes the quality, yes, describes Monica how she feels, right? So she is very tired today. Mohan's drawing is amazing. Now it is descriptive or attributive because it describes what kind of drawing it is. It is boring, good, or it is out of the world. So it is amazing. The car is moving very fast. The children are hungry. The flowers have a nice smell or nice fragrance. Rita is such a pretty girl. Sohan is a brave boy. Car is moving fast. Fast sound like an adverb. It can be adverb as well. Yes, it can be adverb as well. Yes, because it is further defining the verb. Yes, we will come to adverbs. When I come adverbs, there are few exceptions of adjectives which I will show you in adverbs as well. Okay, give me. Yes. हाँ, मैं हिंदी के अनुसार बताता हूँ. डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है जो नाउन की क्वालिटी को प्रखार के लाता है. ठीक है, उसको जो नाउन और प्रोनाउन की क्या कहते हैं, जो हाँ क्वालिटी जो होती है. जैसे कि अगर मैं बोल रहा हूं आप लड़के हो, आप अच्छे लड़के हो, ठीक है, तो वो आपकी उसको विशेषता को और उभर के ला रहा है. ठीक है, तो उस तरीके से आप उसको समझिए कि डिस्क्रिप्टिव नाउन जो मैं आपको बता रहा हूं उसमें जो सिंपल वर्ड है नाउन या प्रोनाउन, उसकी क्वालिटी को वो अलग से बता रहा है. एग्जाम्पल दो एक मेरे को सोच के. इसके अलावा हाँ, I have a red pen. Which kind of pen you have? Red pen. Yes, do we agree? कहाँ पे? The children. नहीं. हाँ हाँ. I am. मैं भूखा हूँ. हाँ. The children are hungry. How are children feeling? They are feeling hungry. So it is describing the feeling of children. That is why it's an adjective. बच्चे कैसे? हाँ. Adjective means something extra about a noun or pronoun. जो उसके अलावा, नाउन के अलावा कुछ उसको एनहांस करता है. समझ रहे हो? नाउन तो हो सकता है, ठीक है, नाउन कॉमन नाउन. अगर आप इसको देखोगे ना तो हम बहुत जनरलाइज कर देंगे अदरवाइज. ठीक है, अब नाउन तो जो है ठीक है. अब जैसे अगर मैंने बोलिए दिस क्लास हैज टीचर्स,
टीचर्स कॉमन नाउन है, ठीक है, बट अगर मैं टीचर्स में से उनके स्पेसिफिक नेम्स लूंगा तो वो प्रॉपर नाउन है। अब उसी तरीके से अगर मैं इसमें ये बता रहा हूं, जैसे द चिल्ड्रन आर हंग्री, ठीक है, द चिल्ड्रन हाउ आर दे फीलिंग, चिल्ड्रन क्या है इसमें, व्हाट इज चिल्ड्रन, व्हाट काइंड ऑफ नाउन, कॉमन नाउन है ना, हाँ हंगर, राइट, यस यस, भूख, यस, पर उसको आगे एनहांस करके हम हंग्री बना सकते हैं। हंगर मतलब जैसे कि उनका अभी किस तरीके का मन है, चिल्ड्रन, बिकॉज उस तरीके से, हाँ, यस, यू आर ऑल्सो हंग्री, okay. Quantitative adjective, it describes the number or quantity of noun or pronoun. A quantity can be few, many, anything, right, but इसमें जो most commonly used होती है, let's look at that, all, no, few, many, any, some, each, either, every, whole, sufficient, most, none and little, ठीक है। Now I have only few balloons to decorate the room, ठीक है, there are 10 pencils in my box, Ron has many chocolates in his almirahs, I have got a little money for new dress, little, many, 10 and few are examples of quantitative adjectives. Sorry, yes, who will give me one more example of quantitative adjective? I have many dresses, thank you, yes, I have 10 pens, right, so it is, we are defining the quantity to that particular. Important but easy, right, numerical adjective, the numerical adjective also called the adjective of numbers. आपको पता है ये जिस तरीके से हम adjectives पढ़ रहे हैं, इसको कहीं बुक्स में, एनसीईआरटी की बुक्स में आपको adjective of number, adjective of quality ऐसे भी आप पढ़ेंगे उसको, but don't get confused, it is the same thing. कई लोग उसको descriptive numerical adjective भी बोलते हैं, कई लोग उसको adjective of number भी बोलते हैं, but it is the same thing, concept कोई different नहीं है, it's the same thing, it's just that certain books prefer that language और कई बुक्स में आपको ये language भी मिलेगी, numerical adjective. So first let's look at the definition. The numerical adjective is also called the adjective of numbers, as it is used to represent the numbers in order of any substance or anything else in a sentence. ठीक है, so numerical मतलब उसमें जो numerical का जो value आ रही है sentence में, that is coming in proper sequence. Let's look at the example. Every human being is selfish by nature. Which is the numerical adjective here? Every. Why every? Correct, right? So we are defining it. Some of them did not participate in the summit. Some. Only a few officers have completed the task successfully. Maybe others were not eligible or others did not understand it. Good. She borrowed 12 books from the library. 12. He visited several shops to get sponsorship. Several. This is all I can do for you. When do we use this statement, this is all I can do for you? हम ये sentence कब use करते हैं? This is all I can do for you. When we want the other person to go. We are actually having a closed conversation. This is all I can do for you. Now you have to decide whether you want to take it or leave it. So this is a very common statement. That is why I'm discussing this with you. This is all I can do for you. So when you listen to that statement, that means the person is actually making an offer, right? He's telling you whether you want to proceed or you want to decline it, right? Could be a job offer, could be something that he wants you to choose a project, could be anything, right? But this is the statement that we use. This is all I can do for you. You decide now and let me know. Many children are playing on the ground. Many children. The second part of this movie is mind blowing. Mind blowing का क्या मतलब होता है? Thank you. Zabardast. Awesome. Right? I really enjoyed the second part of the movie. Yes.
2 strangers came and robbed all the things in your absence. 2 strangers. कौन सा? Prepositions is on, off, it. That is prepositions, which is like mainly used with conjunctions. जैसे conjunctions में जैसे दो sentence starters को join करता है and, because, उसके साथ usually prepositions आती है. पर हाँ, इसमें भी sentences में prepositions use होती हैं, but not to that extent. हाँ. Any questions? हाँ हाँ. इसको आप पढ़ोगे न्यूमरल एडजेक्टिव या आप इसको एडजेक्टिव ऑफ नंबर भी बोल सकते हैं. न्यूमरल एडजेक्टिव बोलो. न्यूमेरिकल मैंने उसको बोला कि उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हैं आप इन टर्म्स ऑफ नंबर्स. बट अदरवाइज अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कौन सा एडजेक्टिव आप सीख रहे हो तो आप बोलेंगे न्यूमरल एडजेक्टिव. या अगर आपको न्यूमरल नहीं बोलना तो आप क्या बोल सकते हो? एडजेक्टिव ऑफ नंबर. इफ दैट इज इजी फॉर यू दैट्स ओके. तो आप उसको ब्रैकेट में ये भी लिख सकते हो. आई वुड लाइक टू कॉल इट एडजेक्टिव ऑफ नंबर. इट्स द सेम थिंग. Like the word this, that, these are also same subjective sometimes. Yes, this, that is we will use in demonstrative adjectives which will come after this. Yes, this, that, because they indicate which. Yes, it answers the. जब आप बच्चों को सिखाते हैं, हाँ हाँ. और adjective of this, that सिखाते हैं बच्चों को, तब आप क्या क्या सिखाते हैं बच्चों को? नहीं, लेकिन आप इनिशियली क्या बताते हैं कि this, that क्या है? This, that, those, these. In NVT class जब हम बच्चों को सिखाते हैं तो मतलब एक होता है हेडिंग टॉपिक वो नहीं होता यूज ऑफ दिस और दैट. तो हम उनको मतलब ऐसे वो पिक्चर हम लोग समझाते हैं कि जो विच इज नियर टू अस यूज इसलिए यूज होगा दिस और ओके. विच इज फार फ्रॉम अस इसलिए यूज होगा तो आप एग्जांपल्स देते हैं उन्हें एग्जांपल देते हैं विद पिक्चर्स. मेन तो ये pronoun में आ जाएगा. Yes. Firstly they are pronoun, after that they will become adjective. तो नाम को भी हमें मतलब इंट्रोड्यूस नहीं करते साइड पर But जब आप pronoun पढ़ाते हैं तब आप ये नहीं पढ़ाते बेटा. नहीं सर, आप I, my नहीं पढ़ाते हैं. सबसे पहले हम क्योंकि दिस दैट को इंट्रोड्यूस कर लेते सर कहना चाह रहे हैं कि basically they are pronoun but they can be used as. हाँ हाँ. बच्चों के लिए ये हमें क्लियर तो हो गया उसको जब बच्चे इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उनको समझ कैसे आएगा? बच्चे को समझ हम यहाँ पे कभी बोल देंगे उसको बेटा ये तो एडजेक्टिव है, और कभी बोला कि प्रोनाउन है, तो वो एग्जैक्टली वर्ड कहाँ स्ट्रांगली कहाँ है वो वर्ड वो एग्जैक्टली वो So ये तो ऐसे पढ़ाते हैं use of this and that. They don't define. नहीं, यूज ऑफ दिस एंड दैट तो मैं हाँ नहीं मैं समझ गया आप जो कह रहे हो यूज ऑफ दिस एंड दैट. लेकिन उससे पहले आप बच्चे को थोड़ा बैकग्राउंड तो दोगे ना कि दिस और दैट का क्या फंक्शन क्या डिफाइन करना. पार्ट्स ऑफ स्पीच से वो आए. हाँ In upper classes we teach them metaphors. And then we teach them that the word can be changed as its part of it can be changed according to the place it has been used. तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सी क्लास में पढ़ा रहे हो आप? फ्रॉम सेकंड क्लास फ्रॉम Second one. तो सेकंड क्लास के बच्चे को पार्ट्स ऑफ स्पीच कैसे पढ़ाते हैं आप? तो डू यू इंट्रोड्यूस देम नाउन्स एंड ऑल या आप खाली ये बता देते कि ये नेम नाउन है ऐसे कैसे आप बताते हैं? क्योंकि सेकंड क्लास के बच्चे के लिए तो थोड़ा सा They don't go in दैट्स व्हाई आई एम that- आस्किंग. हाँ they don't go in that but हाँ, तो आप क्या हाँ noun is equal to names. Names हाँ are all ओके names ओके like that. ओके ठीक है. तो आप एक जेनेरिक वे से उनको समझाते हैं और फिर बड़ी क्लासेस में आप इसको कैसे एनहांस करते हैं? Then we define them. फिर आप उसको प्रॉपर उसको जैसे टाइप्स ऑफ नाउन्स बताते हैं आप सब. Generally इतने डिटेल में नहीं जाते हम. अच्छा We teach them that these are nouns, proper nouns. देखिए आप डिटेल में मत जाइए दैट्स ओके बट एग्जाम्पल्स खूब कराइए बच्चों के साथ. देखिए क्या है ना इट्स ओके आप डिटेल में मत नहीं जा रहे मैं समझ सकता हूँ बट क्या होता है ना बच्चा क्या है ना डेली कुछ ना कुछ सीखता है देख के ऑब्जर्व करके. तो आप जितने ज्यादा एग्जाम्पल्स उसको बताएंगे. क्या आप लिखवाते हैं बच्चों को बहुत नोटबुक्स में? डू यू गिव नोट्स और नो टीचर्स? We do काफी या मतलब enough. डिपेंड्स ऑन द टॉपिक. इट डिपेंड्स ऑन द टॉपिक. ठीक है तो आप मेरे ख्याल से ना कितनी देर की क्लास होती है? 35 मिनट्स. तो 35 मिनट्स में आई वुड रिक्वेस्ट और रादर आई वुड रेकमेंड कि आप 10 मिनट टुवर्ड्स द एंड बच्चों को एक रिकैप किया कीजिए. ठीक है 10 मिनट पहले आप 25 मिनट्स में क्लास को रैप अप कीजिए और 10 मिनट में बच्चों को बोलिए कि गिव मी 5 एग्जांपल्स ऑफ दिस अपनी नोटबुक पे लिखिए एंड आस्क देम टू रीड इट एंड देन करेक्ट इट देयर एंड देन इन फ्रंट ऑफ द क्लास.
ताकि बाकी बच्चों को भी उससे बेनिफिट हो सके, वो देख सके अच्छा ये सर ने बता दिया यार ये गलत है, मैंने इसको गलत यूज किया। क्या हम ये करते हैं टीचर्स? अगर नहीं करते तो करिए, कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि करिए नहीं करिए, पर अब करिए ये, क्योंकि इससे बहुत बेनिफिट होगा। क्योंकि जो बच्चे क्या होता है उनको नहीं समझ आता, कई बच्चे नहीं पूछते, कह रहे यार नहीं मेरे को नहीं पूछना, ठीक है, कई बच्चे होते हैं, नेचर होता है बच्चों का, आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। पर ये क्या होगा इस एक्टिविटी में, क्या होगा कि सब देख रहे हैं कि सर बता रहे खड़े होके कि सर बता रहे कि यार ये यहाँ पे ये गलत यूज हुआ है, उसको हाईलाइट कर रहे हैं, तो बाकी बच्चे सुनेंगे, उससे उनको पता लग जाएगा कि अगली बार अगर सर इस पार्ट ऑफ स्पीच की बात करेंगे तो मुझे ये एग्जाम्पल को ध्यान रखना है। तो प्लीज टीचर्स आप 10 मिनट पहले उस क्लास को रैप अप कीजिए, और मेरे ख्याल से स्पेशली पार्ट्स ऑफ स्पीच में मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है, बाकी तो आप जैसे मैनेज करते करते उनको एक ये छोटी सी एक्सरसाइज कीजिए। टेल देम एवरीबॉडी टू राइट 5 एग्जांपल्स। 5 नहीं लिख पाते, 3 2 1 लिखिए और उनको बोलिए अच्छा खड़े होके बोलिए आप एग्जाम्पल, ठीक है। और फिर आप पूरी क्लास से पूछिए वॉज ही राइट और वॉज ही रॉन्ग। कई बच्चे बोलेंगे राइट, कई बच्चे बोलेंगे रॉन्ग, तो आप उनको बताएंगे उस वर्ड को एनालाइज करके, उस सेंटेंस को, ये देखिए ये इसमें प्रॉपर नाउन है, ये वर्ब है, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। अगर आप खाली उस दिन नाउन करा रहे हैं तो खाली नाउन पे फोकस रखिए, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, खाली उनको बोलिए इसमें नाउन क्या है, अंडरलाइन करके बताइए। Demonstrative adjectives. Demonstrative adjectives are words that point out specific nouns. They help show whether the noun is near or far in time or space. जैसे हम अभी बात कर रहे थे, राइट, जैसे आप बोल रहे थे कि नियर हम उसको बताते हैं उठ के दिस और दैट, राइट। सो उसी वेज में जब हम डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनको सबसे आप पहले बताएंगे कि अगर जो आपके पास है, तो बच्चे हिंदी में कंफर्टेबल रहते हैं क्लास में, राइट, एवरीवन है ना, तो आप हिंदी में उनको करके बताइए एक्शंस, यूज लॉट ऑफ हैंड जेस्चर्स, ठीक है। उनको बताइए कि अगर कोई आपके पास है तो उसको दिस दैट, ठीक है, उससे बच्चे जल्दी ग्रास्प करेंगे। आई एम श्योर सबका अपना स्टाइल है, पर मैं एक आपको वैसे जनरल रेकमेंड कर रहा हूं जैसे मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, तो हो सकता है आपको इफेक्टिव लगे, हो सकता है नहीं लगे, एवरीबडी हैज देयर ओन स्टाइल, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारा मोटिव एक ही है, बट द चिल्ड्रन शुड लर्न। दिस यूज्ड फॉर वन थिंग नियर, दैट यूज्ड फॉर थिंग फार, दैट हिल I want to climb that hill. मतलब I'm talking about there in that. This is my pen. Give it back. Right? Near. These used for many things. These are my chocolates. Give it back. Right? So I want my chocolates back. Right? So when I'm talking to a group, those again used for many, more than one. Right? Singular. This unicorn. Near. Far में that unicorn. Plural में these unicorns. And again plural far में those unicorns. Now I want you to write just this part. This or those इनकी significance लिखिए आप, खाली ये चीज, only this part teachers. Okay? How to choose this? दिख रहा है आपको? नहीं तो आगे आ जाओ क्योंकि थोड़ा small है ना इसलिए. Using this or these for things close to you, space or time. This morning these notes. Using that or those for things farther away, space or time, or less immediate. That mountain, those days. So आप पहले लिखिए फिर मैं आपको बताऊंगा. Done? लिख लिया आपने? Using this or these for things close to you, space or time. What do we understand by space or time? In the universe, as a entire universe. ठीक है, when I refer to space or time students,
teachers, I am talking about universe. ठीक है, something in the universe. This morning, right? Now remember, I am using this for morning. These notes, I am referring notes for many notes, right? Not just one note, many notes. These are your notes. Thank you. It really helped me. Use that or those. Now that again, as I said, that is for far off, right? So for things farther away or less immediate. Less immediate, here I am saying by less immediate means which is less near to me. Okay, immediate doesn't mean कि एकदम करना है, but less near to me. In that way, it is saying less immediate. That mountain, those days, right? Those were the days when I used to have good fun with my friends. That mountain is really high. I want to climb that mountain one day, right? So ये आपको मैं क्यों लिखवा रहा हूँ टीचर्स, बिकॉज जब आप ये स्टूडेंट्स को बताओगे और आपको जब मन में अपना एग्जाम्पल आप प्रिपेयर कर लोगे तो स्टूडेंट्स को समझना ये आसान हो जाएगा कि दिस इज फॉर फार ऑफ, दिस इज फॉर नियर ऑफ, और ये रूल ये आपके लिए, नॉट फॉर स्टूडेंट्स, दिस रूल इज फॉर यू. क्योंकि अगर आपके दिमाग में ये क्लियर होगा तो ऑफ कोर्स स्टूडेंट्स विल बी क्विकली बी एबल टू ग्रास्प दिस. Match number correctly, of course. This pen, these pens. Why is this pens wrong? Because there are many pens, right? हम कभी भी this pens नहीं बोलेंगे. अच्छा, हम लोग, मैंने बहुत बार सुना, we say that those children are playing outside. What is wrong in that sentence? Children. क्या होना चाहिए? Children. Thank you. This water, that advice. So do not combine with other determiners. Determiners means the other words. These students, the, these, never, ever, right? हम करते नहीं है पर कई बार हो जाता है लिखते हुए. ठीक है, we will never do it. ठीक है, this is a very common mistake that students can also make. So remember, these students, we will never add a article जो हम अभी पढ़ेंगे next session में. ठीक है, using either possessive or demonstrative, not both. These students work, my students work. Okay, so these students means that these students from this university came and did their work. पर अगर मैं बोल रहा हूँ my students, so then I'm talking about you. My students did an exceptionally good job today. So let's give them a round of applause. Yes, so I'm talking about my students' work. These, again, it is near. It is not far, it is near. These cookies are fresh. This book is interesting. That car is fast. These apples are fresh. Those houses are big. These are fresh. This is interesting. That is fast. These are fresh. Those are book. इसमें से 2-3 examples बस note कर लीजिए आप. Just 2-3 examples from this. This one is good actually. ये पूरा note करने वाला है. इसमें जो हम बात कर रहे थे एडजेक्टिव या क्लियर हो रहा है. That is fast. That is fast. That is fast. Yes. That is fast. Yes. पीछे लिखा हुआ है that. Right, touch होते हो जाता. That car is fast. That car is fast. उसमें मैंने उसको एक, हाँ, वो उसको दे दिया मैंने, और इसमें खाली मैंने that is fast. मतलब अगर मैं कार की जगह खाली बोल रहा हूँ that is fast, that means हाँ, यहाँ पे मिस कर दिया, पर्पसली मिस किया. वैसे बोलिए that is fast car. That is fast. That is a fast car. आप ऐसे बोल सकते हो. Yes. That is a fast car. हाँ, that is complete. That is a fast car. That मतलब वहां पे that is a fast car. वो वहां पे खड़ी है. क्या रोल प्ले करेगा? वो रोल वहां पे भी यही डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का करेगा क्योंकि that car वो वहां पे दूर खड़ी है. It will indicate that where the position of the car is. That car is there. That car is. आपने क्या बोला, फिर से बोलना सेंटेंस. That is a fast car. हाँ, दैट इज अ फास्ट कार. तो उसमें खाली हम कार की वो बता रहे कि व्हाट काइंड ऑफ अ कार इज इट. दैट इज अ फास्ट कार.
Fast is also right. फास्ट इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, पर हम दैट में उसको डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के साथ उसको इंडिकेट कर रहे हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ कार इज इट? इट इज अ फास्ट कार, बट फास्ट तो क्या हो जाएगा? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, जो हमने सबसे पहला किया था, बट दैट जो हो जाएगा दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। It means now in starting I think they are teaching this that with the noun. This is pen. एज अ प्रोनाउन। ओके ओके, तो नाउन के साथ ही पढ़ाते हैं ना, शुरू में तो ये बोलता है दिस इज अ पेन, दिस इज अ बैग, दैट इज बच्चे, ऐसे बोलते हैं। लेकिन वो सारे एक टाइप से एडजेक्टिव हो गए उसके स्टेज। नहीं, आप जैसे अगर एक सेंटेंस बोलते हैं कि माई स्कूल इज लोकेटेड इन डोमेन, ठीक है, तो आप इसमें सेंटेंस देके बच्चों को कैसे समझाते हैं कि ये आप इसमें प्रोनाउन कौन सा है, कैसे बताते हैं? आप अंडरलाइन करके बताते हैं या बच्चों से पूछते हैं आप? यू आस्क द स्टूडेंट्स एंड आर दे एबल टू आंसर कॉन्फिडेंटली? ठीक है, तो बुक को रेफर करते हैं वो, दे हैव देयर बुक ओपन इन फ्रंट ऑफ देम, ठीक है। हाँ हाँ, महाराज जी की बुक कह रहा हूँ, हाँ हाँ ठीक है। बोर्ड पे या मोस्टली बोर्ड पे सेंटेंस लिखते हैं और अंडरलाइन करते हैं। यू आस्क द स्टूडेंट्स। तो बच्चों को होमवर्क देते हैं आप डेली एंड दे डू इट रेगुलरली? मोस्ट ऑफ द यार देखो, इसमें ना आई टेल यू टीचर्स ओनली वन थिंग है कि द मोर दे प्रैक्टिस द बेटर दे विल गेट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता रहा हूँ। लगता होगा बहुत सिंपल है, अरे पार्ट्स ऑफ स्पीच तो हम जब छोटे थे हमने तब कर लिया, नहीं, अभी भी ये मेरे लिए उतनी रेलेवेंट है जब मैं इतना था तब करता था, क्योंकि ये अब ज्यादा रेलेवेंट इसलिए हो गई है क्योंकि अब आई हैव टू बी वेरी कॉशियस अबाउट द काइंड ऑफ इंग्लिश आई स्पीक। अगर मैं गलत बोलूंगा तो मुझे खुद ही रियलाइज हो जाएगा यार ये मैंने कैसे यूज कर लिया, ठीक है। तो इसलिए आपको खुद बहुत कॉशियस होना चाहिए कि आप क्या पढ़ा रहे हैं बच्चों को। और एक चीज याद रखना, हार्मफुल इंफॉर्मेशन इज वेरी वेरी डेंजरस, राइट? अगर हमें नहीं पता पूछिए, रिसर्च, ठीक है। प्लीज नेवर गिव एनी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार अरे बच्चे के सामने यार मेरा ये हो जाएगा, मुझे ये बता देना। नो, कुछ नहीं होता। लेकिन हमको बहुत कॉन्फिडेंट फील करना है अगर हम बच्चे को पढ़ा रहे। नहीं आता, कई बार होता है, मुझे नहीं आता तो मैं क्या बोलता हूँ, ओके लेट मी चेक, आई विल गेट बैक टू यू। कोई दिक्कत नहीं यार, ह्यूमंस है हम, दैट्स ओके, गलती कर सकते हैं हम, पर ये नहीं बोलना कि नहीं इसका यही आंसर होगा, आप ये लिखो। नहीं, प्लीज नेवर डू दैट टीचर्स, एंड आई एम श्योर आप नहीं करते होगे, बट मैं एक जस्ट फीडबैक दे रहा हूं आपको, ठीक है। अगर हमें नहीं पता, लेट्स डू आवर रिसर्च और तब बच्चों को बताएं, क्योंकि कंफ्यूजन होता है, कई बार हमें भी होता है कि यार ये मुझे ये बताया लेकिन ये मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है यार, मैं कैसे करूं। डन? Distributive adjectives. These are adjectives which are used to refer to individuals or things. जैसे मैंने बताया था, wholesome group or among a group of people or things. It is usually used before the noun it modifies. हम देखेंगे वो कैसे. The distributive adjectives are mainly used to address the subject of the subject. जो करता है, जो कर रहा है, right? Sentence individual. Let us understand with the help of an example. इसमें मैंने specially दो sentences ही लिखे हैं so that we get the clarity. Sentence A, the learners composed a poem. Sentence B, each learner composed a poem. पहले मुझे बताइए इन दोनों sentences में क्या difference है? Loudly, loudly. माइक में बोलो ना, माइक है आपके पास? The learners composed a poem. यहाँ पर एक ग्रुप की बात होती है. Correct. और each learner यानी कि प्रत्येक सीखने वाला. तो इसमें अगर करेक्ट, तो अगर मैं इससे पूछूं दोनों सेंटेंस में कौन सा सेंटेंस ज्यादा क्लैरिटी दे रहा है तो आप क्या बताएंगे? थैंक यू. इसमें क्या है, द लर्नर्स कंपोज ऑफ, मुझे नहीं पता यार किसने कौन कितने लर्नर्स है, कौन है, ठीक है। मुझे ये पता है कि यहाँ पे अगर 100 लोग बैठे हैं तो मिलके उन्होंने कुछ कर दिया होगा, पर यहाँ पे मुझे क्लियरली मैं स्पेसिफाई कर रहा हूँ ईच लर्नर, मतलब हर एक ने अपनी एक कंपोज करके मेरे को भेजी है पोयम. करेक्ट, राइट, agreed. In sentence A, the subject is referred to as a complete whole. Therefore, it is unclear whether the learners wrote the poem in a group together or individually, जैसे कि हमने बताया. However, in sentence B, it is highlighted that the poem is composed by each learner himself. It implies that each of them wrote their own poem separately.
तो ये नोट डाउन कीजिए, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स. Like we have said that the learner composed a poem. It means it can give the sense that all collectively do. ऑल कलेक्टिवली डिड इट. यस यस. तो आप उसको स्टूडेंट्स को भी यही बताएंगे कि जब मैं बोल रहा हूँ कि लर्नर्स कंपोज्ड अ पोएम, दैट मींस दैट वी ऑल डिड इट टुगेदर, इट वाज अ टीम एफर्ट, है ना. बट व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट ईच लर्नर, देन वी आर टॉकिंग ऑफ सेपरेट. each learner that will be the adjective. Each learner, yes Adjective क्या होगा? yes, each, correct, each, yes. और इसके वाले sentence में The learners composed a poem. इसमें क्या बोला आपने? Why is the an adjective? Defining the learner. Defining the learners. और इसमें हम ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें लर्नर्स भी एडजेक्टिव Article होगा. also. हाँ हाँ. like हम तो poem को noun मान रहे हैं कि learner को noun मान रहे हैं. पोयम तो है नाउन, पोयम तो है नाउन, उसको पोयम बिल्कुल नाउन है, या तो ठीक है. noun. हाँ, लर्नर्स इज ऑल्सो नाउन, पर यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम इसको एक ग्रुप और इंडिविजुअलिटी दे रहे हैं सेंटेंस को. तो ग्रुप में क्या हो जाएगा, दे, ईच, या अगर यहाँ पे मेनी होता तो हम यहाँ पे मेनी हो, पर यहाँ पे द है तो हम इसलिए द को मान रहे हैं. Like that. Like article A is the हाँ, अब इसमें द कैन ऑल्सो बी, adjective. यस, Like A is one. One is adjective. Then A is also adjective. अ बॉल, यस, अ संग, दैट इज अ सिंगुलर, यस यस यस. सर ईच जो है वो क्वांटिटेटिव में माना जाएगा. फिर से बोलना. तो ईच जो वर्ड यहाँ पे यूज कर रहे हैं ना, ईच, यस, ईच क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव भी होगा. यस, जो हमने देखा था ईच एवरी, वो उसमें भी आएगा. करेक्ट. इनफैक्ट जो महाराज जी की बुक है टीचर्स, उसमें भी आप पीछे एक्सरसाइजेस देखेंगे ना, उसमें बहुत अच्छे सेंटेंसेस है. उनको सेंटेंसेस को आप एक बार देख के उसमें हाईलाइट करना, ये डिफरेंट एडजेक्टिव्स. किए आपने? हैव यू रेफर्ड? और मेरे टीचर्स गुस्से में क्यों लग रहे हैं? जबरदस्ती बिठाया हुआ है क्या है? और तो कोई बात नहीं है, खत्म कर देता हूँ यार मैं सेशन. टीचर्स गुस्से में लग रहे हैं मुझे थोड़े से. Stress of getting infected. स्ट्रेस ऑफ गेटिंग इंजेक्टेड. अच्छा, अरे डोंट वरी, डोंट टेक स्ट्रेस प्लीज, इट इज फॉर योर गुड हेल्थ. और करण जी ने वैसे ही इतना अच्छे एक्सप्लेन कर दिया है, तो आपको आगे इट विल बी योर इम्यूनिटी दैट विल इंक्रीज. None? Each team performed well on the quiz. Every institution is unique in its qualities. Every room in the hotel was booked. Each student wrote a story in the class. Neither parent was happy with their child's performance. Neither, right? तो इसमें हम clearly बता रहे हैं कि is it one or all? Yes. Question? Clear? Interrogative adjectives. बहुत इजी है, हम लोग बहुत यूज करते हैं, बट मे बी वी डोंट नो द नेम, और अगर हमें पता है तो परफेक्ट. ठीक है. Adjectives that modifies a noun or a pronoun by asking a question are called interrogative adjectives. ठीक है. There are three interrogative adjectives: what, which and whose. Mainly ये यूज होते हैं, इसलिए मैंने three लिखे हैं यहाँ पे. We use these adjectives to ask a question as, बाकी तो you can make trillions of questions, but what is important is that always remember, जब आप बच्चों को interrogative adjectives बता रहे हैं तो उनसे पहले ये बोलना कि आप कोई भी क्वेश्चन बताइए मेरे को. If you want something from your parent, from your grandparent, तो आप कैसे बोलेंगे? ठीक है. देन उसको आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव से लिंक करना. ठीक है, क्योंकि बच्चे क्या होंगे ना, बच्चे इंटेरोगेटिव सुन के बोलेंगे अरे ये क्या है. तो एक थोड़ा सा हमें बच्चों को पहले एक जनरल पूछना कि आप कोई क्वेश्चन, अगर कुछ चाहिए आपको या आपको कोई क्वेश्चन बोलना है तो आप कैसे बोलोगे? मे बी आई डिड नॉट अंडरस्टैंड दिस, कैन यू एक्सप्लेन इट टू मी? ठीक है. सो दैट मीन्स दैट दे नीड मोर क्लैरिटी. तो उसके बाद आप आओगे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स में. द काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट वी आस्क इन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आंसर्स द क्वेश्चंस व्हाट, व्हिच एंड हूज.
Give me an example of interrogative adjective. Whose pencil is this? Thank you. Anybody else? What are you doing? Okay. Yes. Okay. Yes. Please. Which is your laptop and which laptop is yours? अगर हम उससे tense Which laptop is yours? और आपने क्या बोला सर? और उधर लिखा आपने which your laptop है, वहाँ Which laptop is yours? ठीक है. which is your laptop, हाँ. that sentence which is pronoun and this sentence which is adjective. नहीं, इसमें हम वी आर आस्किंग द क्वेश्चन यूजिंग विच. तो अगर आप बोलेंगे विच इज योर लैपटॉप, दैट इज ऑल्सो करेक्ट है, बिकॉज एट द एंड हम इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव करें जिसमें विच आना चाहिए. इट शुड स्टार्ट विद अ क्वेश्चन, दैट इज विच. तो अगर ये मैंने यहाँ पे लिखा विच लैपटॉप इज योर्स, नो दिस ए और बी, नो ए लैपटॉप इज माइन. ठीक है. अगर आप बोल रहे हैं विच इज योर लैपटॉप, द डेल लैपटॉप इज माइन एंड द एप्पल लैपटॉप इज योर्स. ठीक है. तो हम उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं, पर these both are questions. तो इसमें प्रोनाउन नहीं, इसमें हम खाली ये देख रहे हैं कि जो which से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, that is interrogative or not. Does it answer the question? No, I'm talking about the word which. हाँ. So which की बात कर रहे हैं? हाँ. Which is a interrogative adjective. We are talking about which is an adjective. which को हम adjective use हाँ. कर रहे हैं. हाँ. हाँ. तो उसको adjective, क्योंकि वहाँ हम which को pronoun बोल रहे हैं, इधर हम which को adjective बोल रहे हैं. कहाँ? अगर मैं उसी सेंटेंस में which is your laptop में हाँ, हाँ. if I use this is your laptop, this is your laptop, हाँ. that sense this Demonstrative. हाँ. adjective, हाँ. हाँ. वो adjective हो जाएगा. हाँ. But उसी सेंस में जब which is your laptop बोल रहा हूँ, यहाँ which adjective नहीं हो रहा, यहाँ which pronoun हो रहा है. हाँ, क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव फॉर्म ले रहा है वो. करेक्ट. क्योंकि यहाँ पे इंटेरोगेटिव यूज कर रहा हूँ ना मैं. अगर हम उसमें विच स्टार्ट नहीं हो रहा था, विच वॉज कमिंग इन द मिडल ऑफ द सेंटेंस, दैट इज वाई. बट यहाँ पे विच से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, दैट इज वाई इट्स इंटेरोगेटिव. गाइस दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाट ही इज आस्किंग. सर वो बन रहा है. हाँ. दिस इज योर लैपटॉप. ठीक. हाँ. दिस लैपटॉप इज योर्स में प्रोनाउन कौन सा है? दिस इज एन एडजेक्टिव. यस. तो प्रोनाउन कौन सा है? This is your नो नो आई नो दैट, बट व्हाट आई एम आस्किंग यू इज कि यहाँ पे हम लोग अगर ये बोल रहे विच लैपटॉप इज योर्स, यू सेइंग दिस लैपटॉप इज योर्स, तो दिस को यहाँ पे हम प्रोनाउन यूज कर रहे हैं, पर अभी हम प्रोनाउन में नहीं जा रहे हैं. क्योंकि 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 अगर आप इसको देखोगे तो ये दिस कैन टेक मल्टीपल फॉर्म्स. हम आगे देखेंगे कि एडवर्ब भी यूज हो सकता है. ठीक है. सो इसीलिए अगर हम सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच को अगर यहाँ पे कराएंगे ना, तो इट विल गेट लाइक ऑल जम्बल्ड अप इन आवर हेड. मेरा क्वेश्चन ये है कि जो which है ना, that is how it is adjective here. Because it is adjective because देखो, which is an adjective because which laptop ना. no okay हम उसको वैसे भी दे सकते हैं, हम उसको ये भी बोल सकते हैं which is a interrogative adjective because which question define कर रहा है. Which is defining the laptop. डिफाइन. हाँ, जो भी क्वेश्चन आप पूछ रहे हो यहाँ पे. हाँ, लैपटॉप. Both of sentences which is defining the laptop. कौन सा सेंटेंस? दूसरा. That sentence also Which- is your which- laptop. हाँ. Or in this sentence also like which that is your. हाँ. सर जब बीच ना जब कंपोजिट सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है यहाँ पर बीच लैपटॉप, लेकिन वहाँ पर वो कंपोजिट सब्जेक्ट के रूप में नहीं But use that होगा. is not if we are talking about a word. एक word जो describe करता है noun को, that is adjective. Adjective. So if I will say this is my laptop or this is a laptop, so this is defining the laptop. This उसको describe कर रहा है कि this laptop वो adjective हो रहा है. Which also defining, which also describing, which is laptop. यानी कुछ specific उसकी बात हो रही है. तो वो कहीं ना कहीं adjective मुझे लग रहा है. तो है, बिल्कुल है, क्योंकि वो इंटेरोगेट. That sentence है. हाँ, इसमें ना. हाँ. हाँ हाँ बिल्कुल है. विच इज योर लैपटॉप, बिल्कुल इसमें विच इंटर. उसको pronoun लिखा हो तो क्या उसको हम adjective नहीं बोल सकते हैं? नहीं. बोल सकते हैं. हम इसको बोल सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल एज एन इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव हम यूज करें तो ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउन इसलिए है क्योंकि हम आगे जब मैं आऊंगा ना अभी नेक्स्ट स्लाइड्स पे, तो उसमें आप देखोगे कि प्रोनाउंस में भी एक एक्सेप्शन रूल होता है जो मैं आपको करवाऊंगा, लिखवाऊंगा.
जिसमें कि दे कैन टेक द फॉर्म ऑफ प्रोनाउन एज वेल। तो अगर आप उसको एडजेक्टिव और प्रोनाउन दोनों यूज कर रहे हो, बोथ आर करेक्ट। जैसे आपने बोला ना कि यहाँ पे विच इज योर लैपटॉप, विच इज डिफाइनिंग द लैपटॉप, जैसे आप कह रहे हो, ठीक है। तो अगर प्रोनाउन में भी यूज हो रहा है तो विच क्या है इसमें, विच इज व्हाट, विच रिप्लेसेस नाउन। तो यहाँ पे विच कौन से नाउन को रिप्लेस कर रहा है बताओ? नो 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 नो, विच लैपटॉप को कहां रिप्लेस कर रहा है? करेक्ट करेक्ट, सब्जेक्ट को रिप्लेस करेगा ना। तो यहाँ पे इसीलिए दैट इज व्हाई आई थिंक दैट इज व्हाट यू आर ट्राइंग टू आस्क कि यहाँ पे एज अ प्रोनाउन और एडजेक्टिव क्यों ले रहा है ना। तो यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में यूज हो रहा है, यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म में यूज हो रहा Like sir, when you say which laptop is yours, which is your laptop, so he will say this is my laptop. है। ओके, Which laptop is yours? This answer will be same. दिस लैपटॉप इज माइन। Mine. आंसर विल बी द सेम बट इट्स यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। करेक्ट, आंसर दोनों का सेम होगा पर जो ये पूछ रहे हैं इट्स यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट, दैट इज राइट। I think स्वामी जी की बुक में भी ऐसे सेंटेंस बहुत सारे हैं। हाँ हाँ, Hey sir, like which is your laptop? This is my laptop. This is my laptop. Is my laptop. हाँ. When you say which laptop is yours, हाँ. this laptop is mine. दिस लैपटॉप इज माइन Laptop is एंड माइन इज व्हाट? mine is a possession. Yes, thank you, right, because I take ownership of that, correct. जी सर, जी सर। Possessive adjectives, these are the words which are used to indicate ownership or possession of a noun. Please write this, very important. They clarify to whom or what something belongs in a sentence. अब इस पे जैसे आप अभी possessive pronouns कह रहे थे, similarly we will be talking about possessive adjectives. My, your, our, his, her, its, their, your, teams. Asim's, odd one out. Why is Asim's odd one out? करेक्ट नहीं, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमने उसको रिप्लेस कर दिया है ओनरशिप, एक पर्टिकुलर पर्सन को ओनरशिप दे दिया, दैट इज व्हाई स्पेसिफाइज पोजेशन बाय समवन नेम्ड आसिम। आई हैव आसिम्स बुक। ये कब बताते हैं सर? Possessive adjectives are used when we want to take ownership of the Like When we take pronoun table, when बता देते हैं? अच्छा आप अच्छा They are pronoun or they are adjective. Like how आपको हाँ नहीं इसमें जो जैसे pronoun है वो adjective पे काम करता है. They always work as well. एक साथ कैसे करना pronoun टेबल में टाइप pronoun ही है। अगले दिन जाके कैसे बोल सकते हो कल pronoun से आ जाएगा एक वर्ड दो प्रोनाउन टेबल में तो हमारे तो उसमें वो प्रोनाउन के रूप में किए गए, लेकिन वो एज एडजेक्टिव काम करते हैं। जो स्वामी जी भी कह रहे थे कि इसमें ये थोड़ा सा मतलब चेंजेस अलग हो रहे, तो कह रहे थे कि ये एडजेक्टिव के रूप में काम करते हैं थोड़ा सा। लेकिन ना आप जब पार्ट्स ऑफ स्पीच करा रहे हो अलग अलग कराओ, नहीं तो बच्चों नहीं, क्योंकि बच्चों के लिए मुश्किल है, छोटे बच्चों के लिए। आप तो समझ रहे हो क्योंकि बिकॉज आपने यू हैव गॉन थ्रू इट, बच्चे कैसे समझेंगे? सर हमें कभी ये पढ़ाया नहीं गया, मैंने कभी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इतना पता है हाँ कि ये आई बाय मी ये वगैरह सब करेक्ट 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 करेक्ट। नहीं आप इसको इसको प्लीज इस पे एक वो कर लो, और आप एक स्वामी जी के साथ भी प्लीज बैठना करण जी, क्योंकि हाँ बिल्कुल, क्योंकि इसको अलग अलग करके या तो बुक में चेंजेस करेंगे या जो भी है, पर क्योंकि बच्चों के लिए हाँ कैसे, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, नहीं तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे बिल्कुल। अब जब तक वो खोल दो। सेंटेंस भी लगभग सेम ही बनते हैं। हाँ बिल्कुल, माय लैपटॉप दिस इज माय लैप, हाँ 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 पोजेसिव भी काम कर रहा हाँ हाँ, क्योंकि वो ओनरशिप ले रहा है ना लैपटॉप की। करेक्ट करेक्ट। है। इसमें अगर अभी दोनों माय शब्द वर्ड कोई मुझे बताना हो तो लाइक here it is we are using as an adjective, here we are using as a pronoun. So how we can take different examples. सो उसमें जैसे
when we are using Like my ha- just before the noun हम्म, adjective. हाँ, so if we are using जैसे हैरी पॉटर इज अ गुड बुक, माई बुक इज हैरी पॉटर, ठीक है, तो वहां पे मैंने हैरी पॉटर की बुक को रिप्लेस कर दिया माई से, ठीक है, Okay. ठीक है, तो वो क्या था, स्पेसिफिक बुक की जगह मैंने उसको माई कर दिया, माई बुक, राइट. सो इंस्टेड ऑफ गिविंग इट अ पर्टिकुलर नेम आई रिप्लेस इट. फॉर एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है, माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक. सो अगर हम इसको उससे रिप्लेस करना चाहते हैं, इट इज द हाईएस्ट पीक, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सेइंग माउंट एवरेस्ट, इट इज द हाईएस्ट पीक. इसके ना हमें एग्जाम्पल्स, मैं आपको ना एक एक्सरसाइज दूंगा टीचर्स, ठीक है, आप पहले क्वेश्चन राइज नहीं किया, क्वेश्चन किसी बच्चे ने राइज किया इसको लेके नहीं. अभी किसी ने तो बोला होगा कि ये इस जो है इस एडजेक्टिव कैसे हो गया. कौन सा इससे ये वाला? हाँ, इस या हर को लेके तो किसी ने बोला नहीं. तो सर हर तो प्रोनाउन नहीं होता, नॉर्मली तो हर प्रोनाउन नहीं होता, हर एडजेक्टिव कैसे बन गया बोला नहीं. We tell them कि अभी यहाँ डिफाइन कर रहा है नाउन को, जब नाउन को डिफाइन करेगा then इसका adjective. करेगा बट सेंटेंस तो सेम ही है ना सर, कुछ खास फर्क होता है सेंटेंस में भी रहता है ना. Like लाइक आई लाइक I met his sister. तो his sister जो his है वो sister डिफाइन कर रहा है. सिस्टर किसकी है? फिर से बोलो सेंटेंस. I met his sister. आई मेट हिज सिस्टर. तो जो his है, sister किसकी है? उसकी. उसकी है. तो sister को डिफाइन कर रहा है कि his है, not mine. सो हिज इज अ Adjective. एडजेक्टिव, करेक्ट. प्रोनाउन भी तो है वो, वहां प्रोनाउन भी तो ठीक है ना, दिस इज बस उसकी बहन. सर अगर प्रोनाउन होगा ना फिर वो नाउन मतलब एडजेक्टिव का मेन. देखो प्रोनाउन का अगर मेरे को ऐसे लगता है कि आप प्रोनाउन का बेसिक डेफिनेशन यही रखो, विच रिप्लेसेस नाउन, बस. क्योंकि अगर जैसे हम अगर उसको बाकी पार्ट्स ऑफ स्पीच से कंपेयर करने लग गए ना, तो बच्चे तो सर पकड़ लेंगे, ठीक है. या आपके पास एक एक बुक होनी चाहिए एक एक पार्ट ऑफ स्पीच के ऊपर, कि बच्चों को एकदम क्रिस्टल क्लियर उनके दिमाग में घुसे, ठीक है. क्या क्या जरूरी है ये बताना, ये Actually, जब हम जनरली सर बच्चों को इतना डिटेल बता. जी जी जी. हम we focus on the practice, like how to use them, not how means what are the difference or what are the. Got it. कैसे काम करते हैं we just focus on that. लाइक अभी सेंटेंस हमने बोला लाइक यस्टरडे आई Met his sister. met his sister, ये yesterday I met Ram and also I met his sister, ऐसे बोल सकते हैं. तो जब ये सेंटेंस बोलेंगे तो हम इसमें ठीक है, इसको आपको कहने की प्रोनाउन भी मिल देगा. उसकी बहन से मिला, राम से मिला और उसकी बहन से मिला, राम की जगह हमने यूज कर लिया. जब आपने सिर्फ एक सेंटेंस बोला उसमें आप बोलोगे हिज एक एडजेक्टिव हो गया. When I say I met. आई थिंक वो स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहे हैं, आप समझ रहे हो. आप तो जो बोल दिया आपने सही है, पर वो ही स्पीकिंग फ्रॉम अ स्टूडेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. पर मेरे को ये पूछने के लिए भी बच्चे को एक लेवल आना चाहिए, पहले अंडरस्टैंडिंग का एक लेवल. I met him. करेक्ट So करेक्ट. him is a हाँ pronoun where हाँ I बिल्कुल, don't know. क्योंकि उसको रिप्लेस कर रहा है ना, हिम हिज और हो, जैसे वो बोल रहे हैं. I could tell his name also. I हाँ didn't tell. करेक्ट But करेक्ट when I करेक्ट. say I met his sister, हाँ I met sister. हाँ Sister is a noun. हाँ. But sister कैसे? If I say I met his sister, it means sister is specific. one. आई मेट रोहन सिस्टर. Then Rohan is adjective there. Correct. So it's a noun, but it's working as adjective. आई मेट हिज सिस्टर, फिर मैंने रोहन को रिप्लेस कर दिया हिज से. In that sense, the noun का ऐसे बात है, बड़ी बात है. और जनरली in small classes we focus कि use कैसे होते हैं. देखो मैं ये पूछना चाहता हूँ, स्मॉल क्लासेस में डू द स्टूडेंट्स आस्क लॉट ऑफ क्वेश्चंस. उसका इसमें बच्चे पूछते हैं नहीं, बी ऑनेस्ट. बस नहीं. हाँ नहीं, मतलब मैं इससे रिलेटेड पूछ रहा हूँ जो हम कर रहे हैं. बच्चे पूछते हैं बहुत क्वेश्चंस, जैसे करण जी ने भी अभी पूछा, तो मेरे को एक्चुअली ये जानना है, बच्चे पूछते हैं या बच्चे कहते हैं अच्छा यार बस सब तो टाइम होने वाला है भागो, हैं पूछते हैं. ओके ओके, वही मैं पूछ रहा हूँ. ठीक है, अच्छा पढ़ा, अच्छे से पढ़ा. ठीक ठीक. तो इसका मतलब ये प्रोनाउन में हाँ हाँ पूछ. हाँ और वो छोड़ते नहीं होंगे फिर, है ना, जब तक उनके दिमाग में क्लैरिटी ना आए. और ऐसी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं कि हमें कहीं बताना ही पड़े कि लाइक माय एडजेक्टिव ही है. उसको बिना बताए भी मतलब बात हाँ, बिल्कुल. मेरा भी काम है, समझ गया. हाँ और हम क्यों इस पे मतलब इस पे प्रेशर क्यों देने के लिए दीस आर द एडजेक्टिव, इसको लेके बनाना क्यों है? ऐसा लास्ट टाइम स्वामी जी जब वीडियो बनाते थे ना, तो ही स्पेसिफिक जो इसलिए बोला था स्वामी जी ने कि ये एडजेक्टिव होता है, मैंने प्रोनाउन में गलती दे दी है.
डिबेट कह हो रहे रहा है हैं कि मोस्टली जो ये वाले हैं ये एडजेक्टिव में ही यूज होते हैं प्रोनाउन भी यूज हाउ दे आर नहीं तो स्वामी जी ने एग्जांपल्स दिए थे आपको। उनके बुक में प्रोनाउन टेबल इतना बड़ा है उसमें हाँ हाँ फॉर एग्जांपल भी हाँ 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 मार्टिन के जो बुक है ना करेक्ट करेक्ट करेक्ट, उसके वो तो बाइबल है ग्रामर की। रेनन मार्टिन इज द बेस्ट। स्वामी नाम में भी वही हाँ हाँ suggest की थी और बस 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 स्वामी ने ही read in that only बस 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 प्रोनाउन है ही नहीं हाँ। यार एडजेक्टिव नहीं, पर उन्होंने कोई एक्सेप्शन रूल भी बोला होगा, आई एम श्योर। स्वामी जी ने कोई आपको कोई एक्सेप्शन बताया होगा। ये लैंग्वेज जी, जी, जी। मुझे लगता है कि दे आर ऑलवेज एडजेक्टिव्स दे आर नेवर नाउन पर मींस सर, प्रोनाउन जब जैसे आप इसको हिंदी में हम्म, यूज करोगे, हिंदी टू इंग्लिश में हमारी अप्रोच ही तो ये हाँ। प्रोनाउन ही दिखते हैं मुझे। like sir like मेरा तुम्हारा pronouns are हम्म, सभी तो हिंदी pronouns are the word we can stand alone हाँ। I can never stand जब आप यहाँ alone my gone देखो आई थिंक इट डिपेंड्स अपॉन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द सेंटेंस, है ना, कि क्या सेंटेंस को क्या पढ़ा रहे हो। अगर आज आप एडजेक्टिव पढ़ा रहे हो, अगर आप नाउन पढ़ा रहे हो, तो बच्चों को, अगर बच्चे पूछते हैं कि ठीक है इसमें आपने ये नाउन तो बता दिया पर ये क्या है, हाउ इज दिस सपोर्टिंग द नाउन, तब आप बता सकते हो कि दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाउन डूइंग द एक्शन। ठीक है, तो उसको मेरे ख्याल से एक सेंटेंस को आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रेक इट डाउन कि इसमें दिस पार्ट ऑफ स्पीच इज यूज्ड, आफ्टर दिस वी आर यूजिंग वर्ब एंड आफ्टर दिस वी आर यूजिंग एडजेक्टिव। पर हाँ, बच्चा कंफ्यूज नहीं होना चाहिए इन द सेंस कि अच्छा यार ये वर्ड एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, वर्ब भी हो सकता है, देन इट्स ऑल he'll get confused in English language there are so many words है। तो दोनों बनाना ही तो पड़ता हमें सिंपल रखना है ना, पर हमें सिंपल लेकिन क्लियर। ठीक है, हमें सिंपल लेकिन क्लियर। हमारी जो अप्रोच है सर, बुक दैट अप्रोच इज फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। जब हम हिंदी टू इंग्लिश जाएंगे तो ये शब्द कभी भी विशेषण नहीं बन सकते। विशेषण का मतलब होता है गुण, मतलब ये हिंदी वाले क्वालिटी, हाँ हाँ, विशेषण या गुण, विशेषता जो बता रहे कि हाँ विशेषता बता रहे। तो जब आपको बोलना पड़ेगा कि मेरा, उसका, इसका, ये शब्द सीधे सर्वनाम है हिंदी में। ये सर्वनाम अब देखो अब ये यही बात होगी ना। अब जैसे हम एडजेक्टिव्स टाइप्स कर रहे हैं तो इसमें पोजेशन एडजेक्टिव्स बहुत रेयरली यूज होने वाले हैं, लेकिन अगर आप यूज करते हैं और अगर बच्चे समझते हैं इसको, लेकिन ये खाली तब जब हम एडजेक्टिव्स पढ़ा रहे हैं। अगर हम, जैसे सर बता रहे हैं कि अगर हम प्रोनाउन पे फोकस रख रहे हैं और अगर जैसे हम हिंदी टू इंग्लिश करा रहे हैं, तो हाँ ये थोड़ा सा उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। करेक्ट, क्योंकि वो फ्यूचर में जब ग्रामर हम और Advanced पार्ट्स ऑफ स्पीच पे चले जाएंगे, तो तब इनका क्या मतलब एग्जैक्टली, अगर इनको हम एडजेक्टिव नहीं माने तो क्या क्या नुकसान है, तो क्या इसका ड्रॉबैक क्या है? कोई ड्रॉबैक नहीं है। These are still, these can be possessive pronouns as well. These can be possessive pronouns as well. शॉर्ट हैंड की तरह होगी ना, पहले हम आपकी तरफ आगे बढ़ते हैं, छोटा छोटा हो जाएगा, हाँ बच्चा हाँ होगा। हाँ, देखो ना, my, your, our, his, जनरली स्टूडेंट उनके मीनिंग के हिसाब से यूज करता है correct 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 correct। हमें क्या उनको इस चीज में लेके जाना चाहिए या नहीं लेके जाना चाहिए? ऐसे हम अब आप लोग क्या करते हैं? अभी डिटेल में नहीं जाते we tell them but we don't tell them पर आप जाते हो डिटेल में खुद? why नहीं, मैं जनरल पूछ रहा हूँ, आपको नहीं स्पेसिफिकली कह रहा, पर आप खुद डिटेल में जाते हो ताकि बच्चे उस कंफर्ट लेवल पे रहे कि हाँ यार मुझे पता है ये सही बता रहे हैं। उसके लिए आपको डिटेल में जाना बहुत जरूरी है। we do that sometimes दैट इज इम्पोर्टेंट यार, दैट इज इम्पोर्टेंट। बिल्कुल बिल्कुल। like many things are there we don't need to tell क्योंकि जब इन्होंने स्वामी क्लास बहुत अटेंड करी है, स्वामी अच्छा। को एक सेंटेंस में हर एक शब्द का ब्रेकआउट करके बताते हैं। हाँ, तो अभी भी ले रहे स्वामी जी क्लासेस ना? अच्छा अच्छा, तो कितनी देर का होता है वो? 2-3 घंटे का। तो एवरीडे होगा? 3-4 दिन हो, ठीक ठीक है। लेट्स वॉच दैट वीडियो। हाँ, गौर गोपाल दास का हमने एक स्टार्टिंग में वीडियो देखा था। डू वी रिमेम्बर हु इज गौर गोपाल दास? याद है किसी को? नहीं? engineer, yes, he is a motivational speaker and he preaches all over the world, teachers, ठीक है। he is very very intellectual, but apart from that what he says connects with people of all age groups, चाहे वो बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, or whatever he is. So this is a real incident that he is sharing when he was in a flight. Okay, so let's watch and तब मैं आपसे पूछूंगा। and was sitting in India.
It was a long haul flight and Albert Einstein was extremely bored. So I turned towards the Indian and said, shall we play a game? He said, what's the game all about? So Albert Einstein said, look, I'll ask you a question, and if you cannot answer the question, I shall pay you, you should pay me 50 rupees. If you cannot answer the question. And then you ask me a question, and I, as a renowned scientist from Great Britain, if I cannot answer the question, I'll pay you 5,000 rupees. In pounds, he said, I'll convert it. 5,000. So the Indian man said, you're the first, sir. So Albert Einstein said, what is the distance between the sun and planet Earth? Very coolly, the Indian man pulled out 50 rupees and said, I don't know. Take. What difference would it make anyways, So Albert Einstein said, now your turn, sir. So the Indian man asked Albert Einstein, what is that animal which walks up a mountain with 3 legs and comes down with 4? So the scientist was totally taken aback by shock. He said, what do you mean? He pulled his laptop out, searched, he called for the stewardess, give me internet access, asked for a payphone on the flight, call up the scientist, and no answer. Frustrated. He pulled out 5,000 rupees, slammed it in the hands of the Indian man and said, I don't know. The Indian man coolly put the money in his pocket, went back to sleep, So Albert Einstein was so annoyed, he woke him up, said, idiot, I gave you 5,000 rupees. Now tell me, what is it that goes up a mountain with 3 legs and comes down with 4? The Indian man pulled out 50 rupees, said, I don't know. The Indian person is a person who, after the shampoo is over, puts water in it and still finishes it. An Indian person is a person who, when the toothpaste is over, will use the payment to squeeze the last drop out and then throw it in the bin. An Indian guy is a guy who will go to a shopping mall and buy broccoli, which is 300 rupees a kilo, will buy Turkish cherries, which are 1423 rupees a kilo, and will come to the counter while paying the money and say, so dhania patta kharidenge kya? So, in India, he goes to eat a pani puri and the richest man waits for the soup drop puri. An Indian person, how do you know an Indian? When the t-shirt is torn and has holes in it, then the Indian will use it in the night. When it's now not even usable in the night, then he'll use it for Holi. And when it's not even usable for Holi, then he'll use it as pocha. I must tell you, we are sparing. Bollywood is what it is, isn't it? I was again in Madrid with a group of youth and I just learned someone sent me bhajan on the phone. Just a bhajan on the phone. On WhatsApp. I didn't even know what it meant. It was a song. And because it was just buzzing in my head, while I was giving the talk in Spain, I just started humming it in the Hare Krishna melody. So I started singing, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, it was just a melody that came from a song that's bhajan someone sent me. I didn't even know what it was. And this one guy, a British fellow, comes and says, Tu hi hai, tu hi hai. And I thought he was telling me tu hi hai. A successful professional businessman. So what's your secret? How did he do it? People keep asking that question. One guy goes to a very successful millionaire and says, sir, what is the secret of you being a millionaire? What is behind it? The secret of success? He says, my wife.
What were you before being a millionaire? He said, a billionaire. Husband's lady is asking his husband, मैं आपके सपने में आती हूँ क्या? Such expectation that he loves me सपने में. बोला बिल्कुल नहीं. बोले क्यों? बोले नहीं मैं रात में हनुमान चालीसा जप करके सोता हूँ. तो बोले क्यों? सपने में क्यों नहीं आती? बोले भी भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सदा. So many भूत पिशाच coming close to me. Oh God, ask what you can do for God, but no one asks that. Because the eye is so big, my expectations, my desires, my things are so powerful that even when I come to a temple and ring a bell, all I'm doing is asking. I go to Ganpati and I'm praying the same thing. During this Ganeshotsav, one guy, Marwadi fellow, he's singing, Ganpati Bappa Moria, Dhanda Nahi Horia, माल नहीं जा रिया पैसा नहीं आ रिया खर्चा कैसे चलेगा समझ नहीं आ रिया हे बाप्पा मोरिया थारो भक्त रो रिया. Western man comes to India, to UP, one guy was there, sitting boy, selling dahi in a matka, thick dahi. तो वो पूछता है वेस्टर्न मैन, how do you get this such thick milk, man? This thick milk. तो इसको तो ये ज्यादा नहीं होता है मिल्क नाइट मॉर्निंग टाइट. There was a Maharashtrian student studying in a vernacular school. So the teacher was teaching numbers and he wrote on the board numbers and he said, read. He said, Shivanti, 82, 89, 99. There was a teacher in a Marathi medium school and he was teaching numbers. The student was reading the numbers. He said, 82, 89, 99. There was a student in school, Maharashtrian teacher, and the teacher wrote numbers on the and the teacher was saying, read. So he said, 70, 82, 89, 99. I'm telling you the same joke again, isn't it? Do you laugh on the same joke again? No. After a while, if I tell you, you'll say, kuch to gadbad hai. What is this? We don't laugh on the same joke again. Why do we cry on the same problem? One Gujarati lady. She asked her husband, આપણે દિવાળી માં શું gift લાવશો તમે? I don't know Gujarati. What will you get for me? He said, Kutri. He said, Kutri. So this lady got so upset, said, तारी माँ कुतरी, तारो बाप कुतरो, तारो भाई कुतरो, तारी family कुतरी. And then the husband said, अरे बाबरी, bakudi. The husband spat out the gutka and said, Q3, Audi Q3, Baba. So when you put Mawa and gutka in the mouth, then Q3 sounds Kutri. So, just for good fun, I wanted to show you because I know that you were really tired. So, one thing that we learned from this video is that मैं हमेशा बोलता हूँ we should not take life too seriously, right? But we should always be focused, right? Look at that joke that he was telling on the flight. जब वो फ्लाइट पे जा रहा था, and this was a real incident. This man travels like crazy. आपको पता है ये महीने में at least 24 days he's traveling. Gaur Gopal Das ji. He travels so much to the world to give discourses to the people, to students, to universities, to tell them and discuss the problems with them as well. So, one thing that we must learn is that your life can change any moment, right? So always remember to stay focused, be positive, and love what you do. Okay, because if you would love what you do, then the people would love you for what you are doing.
right? So that is your passion. What you are doing today is going to help millions of people tomorrow. Okay, so it's a very noble profession, but remember that you have to put in every single effort that is required. Okay, never ever take this for granted, right? Because you are so passionate about the things that you do, and the students should see that passion in you, teachers, right? So remember, I'm going to send you some homework on adjectives. Okay, so I will send it to you, and please forward it to all the teachers, and good job on the last homework as well. So one question, do you want me to carry on with the parts of speech in detail or not? Is it fine, right? Okay. But remember, my only request is that आप जब students को करा रहे हो teachers, please थोड़ा सा एक level नीचे आके कराना, ठीक है? Because maybe आप लोग समझ रहे हो because you have that intellect, you have that knowledge, but students को नहीं है, ठीक है? Students बहुत young है, and you know you have to come to their level, and I'm sure आप करते हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं करते, but still try to make it a fun way activity for them, you know, whichever way they want to learn, but at the end of the day the message should be clear to them. Okay, thank you, and thank you for all your time. Okay, so I can see you are so tired. Okay, Hari Om, जोर की हरि ओम, हरि ओम.